Good morning, everyone. Welcome to the new class, new phase of your life, the class plus one. Today, we are starting our first curriculum lecture of physics. Welcome to my channel, Physics by Bedi Sir. आज आप लोगों को मैं फर्स्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन देने वाला हूं. We are going to start the very first chapter. The name of this chapter is Physical World and Measurement. Your class 1 curriculum is composed of 10 units in the physics section. And among those 10 units, the first unit is Physical World and Measurement, in which we will discuss about some basic laws, some basic terminologies, some basic terms related with physics, very common general knowledge content. And then in the second portion of this unit is units and measurements, in which we will discuss about different types of physical quantities and various units in order to measure those physical quantities, as well as we will discuss a new concept for you people, which is the concept of the dimensions, that I will discuss within 2-3 lectures after completion of the content units and their measurements. आप लोगों का बच्चों फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें मेनली 3 ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं फिजिक्स की. द फर्स्ट ब्रांच इन्वॉल्व इज मैकेनिक्स. द सेकेंड वन ब्रांच इन्वॉल्व इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. एंड द थर्ड ब्रांच इन्वॉल्व वुड बी ऑसिलेशंस एंड वेव्स. These 3 sections of physics are mainly categorized in 10 subunits. आप लोगों के टोटल 10 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के सिलेबस में, और हमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल मैनर में हर एक चैप्टर को कवर अप करना है. तो आइए आज हम पहला कंटेंट शुरू करते हैं. द नेम ऑफ दिस कंटेंट इज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड various units in order to measure those quantities. आइए शुरू कराता हूं आपको. आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. कहीं पर आप ये भी ऑब्जर्व करोगे द नेम ऑफ दिस यूनिट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? All quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantities. मान लीजिए मेरे हाथ में ये रॉड है, आपको मैं कहूं इसका मास मेजर करो, तो जो इस मास है that is measurable by some weighing machine, by some physical balance, then this mass is treated as physical quantity. मैं आपसे कहता हूं फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड. जो लेंथ है दैट इज ए मेजरेबल क्वांटिटी. विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल मेजर दिस लेंथ. देन लेंथ विल बी ट्रीटेड एज द फिजिकल क्वांटिटी. मान लीजिए मैं आपको कहता हूं ये बोर्ड की सारी लेंथ मेजर करें, देन द लेंथ विल बी ट्रीटेड एज ए फिजिकल क्वांटिटी. लाइक मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, करंट, सारी टर्म्स आपकी फेमिलियर टर्म्स हैं, कोई अभी नई टर्म नहीं है. दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड नाउ सेकंड वन इज मेजरमेंट. इट इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी. जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 liter, then 5 is what? Its numerical value, and liter is what? Is standard quantity or a unit in order to measure
the volume. For example, if I say the mass of this is 0.5 kg, then 0.5 is the numerical value and kg is a standardized unit. For example, I say the length of this rod is 0.2 centimeter or 0.2 meter. 0.2 will be a magnitude and then meter would be a standardized quantity, which is a unit. So we can say that in order to measure any physical quantity, we represent the formula Q equals to NU, where Q is a physical quantity, N is a numerical value, and U is the unit in order to express that quantity. The very important content is for same physical quantity, N is inversely proportional to U. मतलब क्या है इस चीज का? Larger the unit, smaller will be the magnitude. And vice versa. For example, जैसे बच्चे मैं आपको ये कहता हूं, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर. लेंथ इज 2 मीटर. आप कहते हो कि लेंथ 2 मीटर है. ये बच्चा कहता है नहीं सर, लेंथ 200 सेंटीमीटर है. क्या चीज फर्क है? फर्क है? नहीं, चीज तो सेम ही है. 2 मीटर, 2 is the magnitude which is smaller and meter is a unit which is a larger unit of length. 200 centimeter is a magnitude and centimeter is what? A smaller unit. It means 2 meter, 200 centimeter. और आप बच्चे कहते हो कि it is 2000 millimeter. तो 2000 is the magnitude and millimeter is again a unit for measurement of length. तो आप देखिए क्वांटिटी तो सेम ही है. फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी मींस आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ आपने 3 बच्चों ने मेजर की. आपने कहा लेंथ 2 मीटर, आपने कहा लेंथ 200 सेंटीमीटर, आपने कहा 2000 मिलीमीटर. तो टर्म तो सेम ही रही, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम हुई, बट आपका यूनिट बड़ा, आपका यूनिट थोड़ा छोटा और आपका यूनिट सबसे छोटा. तो इट मींस जितना यूनिट बड़ा होगा उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना यूनिट बड़ा होगा उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी. लार्जर द यूनिट, स्मॉलर विल बी द, लार्जर द यूनिट, स्मॉलर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू. तो अभी आप पहले ये 2 डेफिनेशंस नोटबुक पे नोट कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाने हम सबने अच्छे ढंग से. दिस इज फिजिकल क्वांटिटी. ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड नंबर 2, measurement, the process in which we compare the amount of the physical quantity with a standard amount of that quantity is called measurement. आपके टॉपिक का नाम भी क्या है?
फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो जो स्टेटमेंट है चैप्टर की वो मैंने दोनों बातें कह दी, फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज मेजरमेंट। एंड और मैंने कहा चैप्टर का पोर्शन कहीं पर क्या लिखा होता है, यूनिट्स। तो इन ऑर्डर टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर two parameters. What are those? One is the magnitude of that and other one is the unit in order to express that physical quantity. तो जितनी physical quantity का magnitude बड़ा होगा उतना यूनिट छोटा होगा, एंड जितना magnitude छोटा होगा उतना यूनिट बड़ा होगा। Both are reciprocate of each other. यहां पर आप नोट कीजिए इतना पहले, then I am going to explain the statement of the units. तो आपने physical quantity as well as measurement. Now I am going to define the another term, unit. All physical quantities are measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity which has a constant magnitude. These are called units. बहुत कॉमन चीज है, हर बच्चे को पता है। यूनिट जैसे टाइम का यूनिट मैं आपसे पूछूं आप कहोगे जी सेकंड, लेंथ का पूछूं आप कहोगे जी मीटर, मास का पूछूं आप कहोगे जी किलोग्राम। तो ये जो चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, फाइनाइट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है उनका, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। रिगार्डिंग यूनिट द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटिसेबल। ध्यान दीजिएगा यूनिट्स को के लिए। पहली बात, इट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर है, उसकी एक प्रॉपर, जब साइंटिस्ट ने बात की, इनकी एक फाइनाइट डेफिनेशन फ्रेम की। आई एम गोइंग टू डिलीवर यू द फाइनाइट डेफिनेशन ऑफ एवरी यूनिट। तो ये जो यूनिट है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, these are well defined units. Any unit should be having particular defined definition. Second one, it should be easily accessible and reproducible. क्या एक मतलब टर्म का मतलब क्या है कि इसको आप प्रॉपरली असेस कर पाओ, यूज कर पाओ, और एक बार मान लीजिए ये खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसको दोबारा से फॉर सेम क्वांटिटी रिप्रोड्यूस कर पाओ। अब जब आप जैसे देखते हो वेइंग पैन्स में आप वेट्स यूज करते हो, जैसे 1 kg का वेट है, तो जब से डिफाइन हुआ है ये 1 kg, तब से हम बार बार अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हर जगह असेस कर सकते हैं। तो यूनिट तब माना गया ना एक स्टैंडर्डाइज यूनिट। इसीलिए लेंथ का यूनिट मीटर, आप क्लोथ मर्चेंट के पास जाते हैं तो एक मीटर रॉड होती है, स्केल होता है बड़ा 1 मीटर रॉड, तो वो एक तो है नहीं, बार बार आप उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो असेस भी कर सकते हैं। तो यूनिट शुड बी इजीली असेसिबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। द साइज ऑफ द यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज एंड टू स्मॉल। जैसे लेंथ का यूनिट हम लेते हैं नॉर्मली मीटर, आप लेंथ को मिलीमीटर में भी मेजर करते हो, तो मिलीमीटर एक बहुत छोटी टर्म है। जब आप बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करोगे तो मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना बड़ा कम्बरसम लगेगा, ऑड सा लगेगा। तो इसलिए हर किसी यूनिट के लिए आपका जो यूनिट है वो ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। And the very important factor is it should not change with time or other physical parameters like pressure, temperature, humidity. जैसे मान लीजिए 5 साल पहले 1 kg का मास था आपके पास, कहीं वेइंग मशीन के में 1 kg का वेट पड़ा था, तो वो जो है 5 साल पहले जो था, 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। वो समर्स में, विंटर्स में प्रेशर के कारण,
मॉइस्चर के कारण फिजिकल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके कारण चेंज नहीं हुआ, तभी हमने उसको एक स्टैंडर्डाइज माना। तो फिर यूनिट एक ऐसा होना चाहिए जो टाइम की पैसेज के साथ चेंज ना हो और डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके कारण चेंज ना हो। तो यहां पर मैंने आपको क्या दिया, अभी पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी फिजिकल क्वांटिटी, फिर पढ़ी हमने मेजरमेंट, अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन आप नोट कीजिए। तो characteristics of any standard unit, it should be well defined, it should be easily accessible and reproducible, the size must not be too large or too small, and it should not change with the passage of time। यहां पर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी अगली डेफिनेशन नोट कीजिए। कौन सी डेफिनेशन, यूनिट की और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल एंड दूसरी derived quantities। The fundamental quantities which are independent of each other and cannot be further resolved into other quantities, जो अपने आप में एक बेसिक टर्म्स हैं जिनको आगे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उन टर्म्स को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अब तक साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अटेन किए हैं। These 7 fundamental quantities are length, mass, time, current, temperature, luminous intensity, ये लाइट की ब्राइटनेस के साथ रिलेटेड टर्म है, एंड अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। तो 7 कौन कौन सी याद करिए मेरे साथ साथ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 क्वांटिटीज को क्या मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी क्वांटिटीज कौन सी हैं, डिराइव्ड। जो क्वांटिटीज इन 7 फंडामेंटल की हेल्प से अटेन होती हैं, इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। लाइक विच डिपेंड ऑन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपने बहुत सारे टर्म सुनी हुई हैं। Those physical quantities are treated to be derived quantities। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं, फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड। फंडामेंटल कितनी है, 7। डिराइव्ड कितनी है, so many। जैसे जैसे +1 चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आपके सामने नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी। +2 में सिलेबस में नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी। जो फिजिकल क्वांटिटीज में हम इन 7 का यूज लेंगे, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह से जो यूनिट्स इन 7 को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो यूनिट्स हम इनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उन यूनिट्स को बोलेंगे क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे आपको पता है लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, 10th क्लास में अभी आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नई टर्म है आपके लिए, फिर भी यूनिट पता, कैंडेला,
क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। जो ये यूनिट्स हैं, ये किसके यूनिट्स हैं? यूनिट्स अंडर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई नेम्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। सिंबल इनके एम, के जी, एस, कई बार SCC भी लिखते हैं, एम्पियर, आई और ए सिंबलाइज कर देंगे हम इस चैप्टर में, केल्विन, के, कैंडेला, CD, क्वांटिटी ऑफ मैटर MOL, मोल। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, ये क्या है बच्चों? ये यूनिट्स हैं जिसके फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्रेस होती हैं जिनसे, इसलिए यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। और बाकी जैसे मैं इधर यूज करूं, डिस्टेंस का यूनिट क्या? मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या यूनिट हुआ? स्पीड का। क्या नाम देंगे इसको? डिराइव्ड यूनिट। जैसे आपने सुना, सबको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। डाइन, इधर से बोल रही आवाज आई, डाइन। मीटर, किलोग्राम, ये तो बेसिक हो गए। न्यूटन कहां से बनेगा? इनकी हेल्प से। डाइन कहां से बनेगा? इनकी हेल्प से। न्यूटन, डाइन, जूल। जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डिराइव्ड यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल के यूनिट्स हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और बाकी सारी डिफरेंट क्वांटिटीज के जो यूनिट्स पढ़ोगे, उनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो नोट कीजिए, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 2 टाइप्स। कौन सी 2 टाइप्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके जो यूनिट्स कितनी है? फंडामेंटल 7। डिराइव्ड कितनी है? अनलिमिटेड। अभी आपने बहुत सारी नई टर्म्स पढ़नी है। इनके जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके जो यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नोट कीजिए जल्दी से अपनी नोटबुक पे प्लीज, प्रॉपरली ये सारे सिंबल्स यूज कीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में 2 तरह की, कौन कौन सी? फंडामेंटल और क्या? डिराइव्ड। तो लगता है कुछ बच्चे थक गए हैं नोट करते करते फर्स्ट डे। चलिए थोड़ा सा अच्छा काम और बताता हूं। कुछ वैल्यूज लर्न करनी है हमने। अभी मैं आपको कोई एक टेबल देने लगा हूं, उस टेबल को आप सबने अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाना है। और ये टेबल हमें 2 इयर्स के करिकुलम में हेल्पफुल रहेगा। ये बेसिक कंटेंट है जो कि +1 के वेरी फर्स्ट डे में मैं आपको डिलीवर करूंगा, और कंप्लीट +1, कंप्लीट +2 में इस टेबल की यूटिलाइजेशन हम लेते हैं। ये आपने कुछ बच्चों ने लोअर ट्रैक में अच्छे से सुना भी होगा, बट अब ये आपकी एक नीड है, नेसेसिटी है, जो सबको याद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने यूनिट लेंथ का सुना, मीटर, सबने सुना? रेज हैंड्स। सुना। और उसके बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ये जो मिली, सेंटी, माइक्रो, ये हैं प्रीफिक्सेस ऑफ 10 पावर। जैसे डेसीमीटर 10⁻⁴ कितना होता है बच्चों? काफी बच्चों को पता है, शाबाश, बहुत हाथ नजर आ रहे। 10⁻⁻1। सेंटी 10⁻⁻2। तो कुछ तो कॉमन सब बच्चों को पता होते हैं। जैसे आपने किलो सुना है, डेका सुना है, हेक्टो सुना है। तो हमें +1 अब क्लास में, ये अब आपकी बड़ी हो गई है क्लास, 9th 10th में जो आपने बेस सुना है उसको हम थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो इस क्लास में आपको कुछ वैल्यूज को लर्न करना है। तो आइए मेरे साथ ये वैल्यूज लर्न करें, मैं आपको हेल्प देता हूं। जैसे डेसी, सिंबल्स पहले पता होने चाहिए। स्मॉल डी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली
10⁻³ माइक्रो, इस सिंबल को ऐसे डालना है और बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? एब्रीविएट ग्रीक अल्फाबेट है म्यू। 10⁻⁶ नैनो, 10⁻⁹ पिको, पाइकोनी, पिको, 10⁻12 एक्सरे यूनिट, सिंबल इज XU, 10⁻13 फर्मी ऑफ फेम्टो, 10⁻15 HO, 10⁻18 ज़ेप्टो, 10⁻21 यक्टो, 10⁻24 सिंबल स्मॉल z, सिंबल आप इसको स्मॉल z डाला मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड देन स्मॉल y यक्टो 10⁻24। आप देख रहे हो इनमें से इस वैल्यूज ट्रैक में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? हाथ खड़े कीजिए, दिस वन। और सबसे छोटी टर्म दिस वन। सबसे बड़ी, छोटी 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 छोटी, लास्ट स्मॉलेस्ट वन। तो ये वैल्यूज लर्न करनी है। मैं आपको आज एक छोटी सी वर्कशीट दूंगा जिसमें मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, हाउ वी विल कन्वर्ट। अब ये देखिए, पहले डेका कैपिटल D वैल्यू 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जेटा, योटा 10⁻24, 10⁻21, 10⁻18। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यहां सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे। तो बड़ी कंफर्टेबली एक सीक्वेंशियल मैनर में ये टेबल फ्रेम कीजिए और मैं आपको डिलीवर करने लगा हूं एक बेसिक वर्कशीट, जिस वर्कशीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और मैं आपको उन क्वेश्चंस में बताऊंगा कि हमें ये वैल्यूज को कैसे कन्वर्टेबल करना है। ड्रॉ कीजिए, नोट कीजिए अच्छे ढंग से। ये आपकी कोई क्वेरी होती है, मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। I will try to resolve each and every query of you people. Thank you so much.